अब आपके क्लास में बैठने नहीं बोला है सर आपको मैंने कि मेरे क्लास में आके बैठो, लंच में जितना पढ़ाई करने बोला है वो करना है। दूसरे क्लास होते हैं तो उनका पढ़ाई करते हो ना, तो वो होता है फिर आपका भी कर रहा हूँ ना। कहाँ किया? एक वर्ड शब्द एक पढ़ा था आपने, सच बताओ मुझे, मुझे पता नहीं का पढ़ाई किया हो, केमिस्ट्री का पढ़ाई किया क्योंकि तेरे पास पसंद है आ रहे हैं हमारे में। You don't think when you come for the class you should revise and come, that is all I am asking you also say. Don't you think? This is just wasting time. I have to keep revising. If you don't show any sincerity, don't expect it from me. This is not the attitude that will work for 9th standard. And if you argue with me, that is definitely not good. Okay, whatever ego you have, please shove it. Chalo. Displacement time graph का सबसे I will draw both the graphs together. Let us take situations. How do we take situations? Just make it easy. अभी आप लोगों को समझ में आएगा नीचे क्यों जा रहा है ऊपर क्यों जा रहा है। एक एक करके situation. सर सबसे पहला situation हम लोग लेते हैं. We will always draw a table which makes our life easy. I will take displacement time और displacement upon time क्या देता है मुझे? Velocity देता है कि नहीं? I am taking displacement 0 सेकंड पे 0 displacement 0 लेते हैं, ठीक है? शुरू करते हैं. My body, let's say I left home and I was stuck at the signal. मुझे भी सिग्नल में मैं अटकी, थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किया ना मैंने घर से, little distance I have traveled from the house. When I got stopped at the signal, that is when I started counting my or making the graph. Just that is when I started drawing the graph. Did you understand where did I start drawing the graph? I am, let's say, at 10 meters from my house. 10 meters from my house, and this is where I start the counting. Did you understand? मैं घर से 10 मीटर दूर पहुंच गई हूँ because I took my car out or something and now I have to wait at the signal. Now I am taking the count. So time 0 seconds में 10 मीटर move किया. हाँ, तो velocity कितना होगा? 10 upon 0. Distance upon time तो इसको 0 ही ले लेते हैं. Infinity होगा, अब लेते हैं 0. फिर body 10 मीटर में ही है, 1 second हो गया. ठीक है? So how much is this? 10 मीटर per second होगा कि नहीं? 10 upon 1. Distance upon time is velocity. फिर से 10 मीटर पे ही है, but 2 seconds हो गया. तो 5 होगा क्या? नहीं. Always remember this minus this. मतलब क्या? टाइम कितना elapse हुआ? T2 minus T1 कितना है? 2 minus 1 है कि नहीं? और समझ में आ रहा है? 25 अच्छा ठीक है. At 0.2 seconds. Forget about the velocity. अच्छा समझा. At time 2 seconds it is at 10 meters. Forget about velocity. At time 3 seconds also it is at 10 meters. ठीक है, इसको भूल जाओ. यहाँ तक समझ में आया? Let us draw the distance time graph. This is distance in meter. This is time in second. This is 0, 1, 2, 3, 4 seconds तक देखते हैं. और ये होगा 10 मीटर ट्रैवल किया ना, तो इसको 5 मीटर लेते हैं, इसको 10 मीटर लेते हैं, इसको 15 मीटर. Now 0 टाइम पे कितना था? 10 मीटर पे था. This is my point. This is my point. Velocity नहीं देख रहे हैं हम लोग. This is my point. पक्का? Now 1 सेकंड पे कितना है? 10 मीटर. So this is the point. 2 सेकंड पे कितना है? 10 मीटर पे है कि नहीं? 2 सेकंड पे 10 मीटर. 3 सेकंड पे कितना है? 10 मीटर पे है. So can I say the velocity time graph, the distance time graph is a straight line? So what is the slope? Slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1. कोई भी दो पॉइंट ले लो, इसको ले ले. बता जल्दी कोऑर्डिनेट्स बता. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता. 3, 10. वेरी गुड. इसके कोऑर्डिनेट कौन सा लेगा? ये पॉइंट ले ले. 1, 10. So what will be the value? 10 minus 10 upon 3 minus 1. That is equal to 0 meter per second. What do you understand by this? Let us 0 upon 0. That is what? अच्छा Pair. Infinity. हाँ? 0 upon 0 upon anything is 0. Anything upon 0 is 0. Pay attention. What is our conclusion from this graph? Let us see. What happened to this body? This body continued to be at a distance of 10 meters from the house. Did it move at all? If it did not move at all, can I say now when the body does not move, distance time graph is a straight line? पर मूव ही नहीं किया तो वेलोसिटी किधर से आएगा? मूव किया क्या बॉडी?
10 मीटर पे थी मैं 1 सेकंड 0 सेकंड पे, 1 सेकंड पे भी 10 मीटर पे ही हूँ, 2 सेकंड पे भी 10 मीटर पे ही हूँ, 3 सेकंड पे भी 10 मीटर पे ही हूँ। मूव किया है मैंने, मूव नहीं किया तो वेलोसिटी क्या होगा? तुम लोग लॉजिकली सोचो, if a body does not move, what is the velocity? 0. So can I say that here also we found velocity as 0? टाइम बढ़ रहा है. टाइम बढ़ रहा है, लेकिन हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज हो रहा है. When displacement does not change with respect to time, the body is stationary. And if the body is stationary, the displacement is 0 and the velocity is also 0. Displacement 0 ही है. 10 minus 10 क्या होता है? Initial to final position. I was at 10 meter position. After that also I was in 10 meter position only. 10 minus 10 क्या होता है? 0. डिस्प्लेसमेंट भी 0 ही हुआ है बॉडी का. टाइम को भी माइनस करेंगे तो बना आएगा. किसको? टाइम को भी माइनस करेंगे. वही तो, सबको माइनस करके भी दिखा रहा हूं. नाउ पे अटेंशन. स्लोप देखा आप लोगों ने? अभी वेलोसिटी देखते हैं. आई विल एक्सप्लेन दिस वेलोसिटी टू यू. ऑलवेज रिमेंबर इट इज ऑलवेज अ चेंज. व्हाट इज इट? Change. इफ देयर इज नो चेंज यू कैन टेक एग्जैक्ट वैल्यूज. नाउ फ्रॉम हियर चेंज देखते हैं. फर्स्ट आई विल शो इट, देन आई विल ड्रॉ इट. ओके? So velocity is going to be change in distance upon change in time. हाँ. So that is going to be change in distance. तो 10 ही था. Change in distance. 10 ले लो. अब देखो इसका 0 वाले टाइम पे कोई वैल्यू नहीं आता है. यूजुअली जब टाइम 0 होता है ना, we never find values for that. तो उसको छोड़ दो. इधर क्या चेंज है बता? Change in distance क्या है? 10 minus 10 upon 1 minus 0. That is 0 upon 1. That is 0 meter per second. ये है कौन सा पोजीशन? पोजीशन बी बोलते हैं इसको. ठीक है? वेलोसिटी एट सी क्या होगा? 10 minus. पोजीशन एट सी 10 माइनस पोजीशन एट बी. द चेंज होगा कि नहीं है? चेंज है. चेंज हम लोग हाँ. ग्रेटर माइनस स्मॉलर करते हैं. अपॉन चेंज इन टाइम दैट इज 2 minus 1. That is equal to 10 minus 10 upon 2 minus 1. That is also 0 meter per second. Understood? Ma'am, easy velocity. जब तक 10 है तब D तक at 0. C, velocity at C. Velocity at D कितना होगा? ये D, C. Zero. At D. Okay. At D That will be will be, zero. will also be 10 minus 10 upon 2 minus 1. That is equal to 0 meter per second. ये आगे नहीं बढ़ेगा तब तक 0. मैम BD का तो 3 minus 2 है. 3 minus 2, sorry. My bad. So let us now, can I write safely write velocity is 0, 0, 0, 0? Yes. So what will be the velocity time graph for this same arrangement? Zero. For this same situation? अच्छा. It will be, this is time, this is velocity in meter per second and in seconds. ये अगर 1 2 3 है, ये अगर 1 2 3 है, तो ये क्या लाइन रहेगा? फ्लैट लाइन. क्योंकि 0 पे ही है कंटिन्यूअसली. 0 मीटर पर सेकंड है कि नहीं? समझा? 0 से मूव किया क्या? नहीं. वेलोसिटी एक बार में ऊपर गया, तो इस पॉइंट 0 पे भी 0, 1 सेकंड पे भी 0, 2 सेकंड पे भी 0, 3 सेकंड पे भी 0. So these are the points or not? Who did not understand this? मैम ऐसा डाल दो तब उसमें ऐसा. अभी करते हैं ना, एक एक करके पढ़ेंगे. Did you understand the first situation where the body is stationary? What is this situation? Stationary. Body is stationary. If you see, if you have got your formula handbook, you should be getting it. I have done all the situations side by side for you. Now, let us see the second situation. The body is moving with uniform velocity. What is the body moving with? Uniform velocity. फिर भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे S T B because it is easy for me to do S upon D if I write it in this order. Let's say the body was in position 0 at 1 second. 0 second कभी भी नहीं लेंगे क्योंकि infinity आ जाता है. We will never take. Then the body was at position 10 meter at 2 seconds. Then the body came at 30 meter at 3 seconds. And then the body came 40 meters at 4 seconds. थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है कि नहीं? टाइम जैसे जा रहा है, बढ़ रहा है आगे बॉडी. Okay. Now, what will be the velocity? ये इस पॉइंट पे velocity 0 सेकंड. इस पे क्या रहेगा? 0 मीटर पर सेकंड. इसको हम लोग छोड़ 0 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 5. नहीं, 10 minus. देखो, no. 10 minus 1 upon 2 minus 1. 10 meter per second. 1 आएगा. Minus 1. अरे 10 minus 0, sorry. 10 minus 0 upon 2 minus 1. What will this be? अच्छा ये 20 होना चाहिए था. ये 20 है फिर. Sorry, bye. 20 minus 10 upon 3 minus 2. That is also 10 meter per second. हाँ. तो हम स्लोप के फॉर्मूला से निकाल रहे हैं सारे.
स्लोप का फॉर्मूला से ही सब निकालते हैं बेटा। y2 minus y1 upon x2 minus x1 सब कुछ तो अपने फॉर्मूला से 30 minus 30 minus 20 3 upon 4 minus 3 that is also 10 meter per second। अच्छा चलो इसमें एक्सेलरेशन भी देख लेते थे। वेलोसिटी जब भी जीरो आ रहा था तभी एक्सेलरेशन ढूंढ के कोई फायदा नहीं क्योंकि जीरो ही आएगा। इट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इधर क्या होगा, इसको छोड़ दो, इससे देखो 10 अपॉन वेट v अपॉन t होता है कि नहीं। सो दिस विल बी 10 माइनस ये वाला पॉइंट जो है ना, दिस पॉइंट इज अ लिटिल ट्रिकी। वी ऑलवेज सी दैट ये जीरो लेते हैं ना हम लोग जब भी, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ये वाला पॉइंट को थोड़ा हम लोग भागते इग्नोर करते हैं। ये वाला 10 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1 नहीं, ये मेरा वेलोसिटी था। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 10 माइनस इसमें क्या है वेलोसिटी 10 10। ठीक है, इसको भी 10 अज्यूम कर लेते हैं। इसको भी 10 अज्यूम करें। इस पॉइंट पे भी सोचो 10 को 10 मीटर पर सेकंड ही आएगा फिर तो। इसको छोड़ो, एक काम करो एक सेकंड ऐसे नाउ इट विल बी इजी। 40 ये 5 सेकंड पे, तो ये भी 10 होगा कि नहीं। 40 minus 30 upon 5 minus 4 is equal to 10 मीटर पर सेकंड। चलो इसको हटा दो। अभी तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना होगा, 10 minus 10 upon t होगा कि नहीं। क्या होगा, क्यों होगा बेटा 10 minus 10 कितना होगा, ये स्लोप निकाल रहे हैं। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन। स्टॉप इट, stop whatever you are doing beta, pay attention to the word। tell me quick कितना होगा 10 minus 10 final minus initial upon time, so that will be 10 minus 10 upon 3 minus 2 that is equal to 0। 10 minus 10 upon 0 है 4 minus 3 देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम। हम लोग वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम कर रहे हैं। velocity upon time मतलब 10 minus 10 upon 4 minus 3 that is also 0 and this is how much 10 meter per second। इधर भी आया था 10 minus 10 upon 5 minus 4 that is also equal to 0 meter per second square। what does it tell you, we will come to that after drawing both the graphs। no need to draw this एक्सेलरेशन तभी होता है तभी लाइक एक बॉडी 0 to 10 पे जाता है ना। अभी पता चल जाएगा ग्राफिक, अभी पता चल जाएगा तुमको। pay attention first we will know both the graphs together। this is distance time graph, distance is in meter per second, time is in meter second। Distance meter per second। मीटर पर सेकंड कैसे अरे meter स्पैन and this is meter per second, sorry second में time and this is meter per second में velocity। is that clear? let us draw this now। 0 second पे जो भी होना था 10 ये displacement 10 1 जल्दी से बैठो। so now see displacement is 10 20 30 40, so can I write 10 20 30 40 here? time is 1 second 2 second 3 second 4 second 5 second right। let us plot it। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, याद रखो 1 सेकंड पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 2 सेकंड पे क्या हुआ 10 मीटर, 3 सेकंड पे 20 मीटर, हाँ 4 सेकंड पे 30 मीटर। तो 30 4 के साथ कोइंसाइड करें ये पॉइंट होगा एंड 5 सेकंड पे 40। so can I say it is it's a straight line passing through the origin। ओके इसका स्लोप निकालोगे तो भी ये पॉइंट क्या है 5,40 और ये पॉइंट क्या है 3,40। 3,10 and this was 5,40। स्लोप कहाँ देखा क्या नहीं कुछ 2,10 होगा यार। ये 2,3 ये वाला पॉइंट लिया था, ये वाला पॉइंट आई टू हाँ ये वाला सॉरी 3,20 है ना। दिस विल बी 3,20। हाँ वही बोल रहा था। so what will be the slope of this line y2 minus y1 upon this is by slope method, this is by v upon t। 40 डिवाइड बाय 5 करेंगे देखना कर वो कुछ स्पीड आता है ना स्लोप हाँ का। इसका तो स्पीड ही आएगा ना मीटर पर सेकंड। देखते हैं y2 minus y1 upon x2 minus x1। y2 कितना है 5/40
y2 अच्छा सॉरी 40 minus 20 upon 5 minus 3 that is equal to 20 upon 2 that is equal to 10 meter यही आया था ना by normal method of v upon t a is equal to v by t वही आया था कि नहीं हमें both methods 30 का आंसर इज करेक्ट नाउ लेट अस डू दिस वन इसका क्या है वेलोसिटी क्या है 10 ही चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड ले लूं हां ये 20 पे तो पहुंचेगा ही नहीं 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 लेट अस 1 सेकंड पे कितना है डोंट केयर 2 सेकंड पे कितना है 10 2 सेकंड में 10 है कि नहीं वेलोसिटी हां 10 10 10 10 3 सेकंड पे भी 10 4 सेकंड पे भी 10 5 पे भी 10 so what is this is a straight line parallel to which axis let's try to find the slope of this line slope will give me what बट कभी तो एक्सेलरेशन हुआ रहेगा ना अरे होगा ना धीरे-धीरे तो बॉडी अभी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे मूव कर रहा है होगा एक्सेलरेशन बताती हूँ स्लोप मेथड से क्या होगा कोई भी दो पॉइंट ले लो व्हाट इज दिस पॉइंट 5, 10 व्हाट इज दिस पॉइंट 2, 10 so 10 minus 10 upon 5 minus 2 that is equal to 0 upon 3 that is 0 meter per second square what is this zero acceleration that means that the body is moving with uniform velocity that means the velocity is not changing that means it is covering equal distances in equal time interval can I say it is accelerated it is not accelerated because it is moving the same distance in the same एक सेकंड में वो 10 मीटर ही ट्रैवल कर रहा है तो it is not an accelerated motion it is a completely what do you say what will you say Retardant. Constant. कांस्टेंट बोलो। Constant velocity. that's very आप लोग ने दो चीज uniform velocity what is the area under this graph area Displacement. distance or displacement area displacement or distance or not अच्छा what is this figure रेक्टेंगल rectangle का एरिया कितना होता है लेंथ कितना है इसका रुक जाओ ये क्या है पूरा का पूरा 5 और ब्रेथ कितना है 10. इसका 10 अच्छा 5 यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड और ये 10 का यूनिट क्या है नहीं 5 का यूनिट सेकंड दिस इज सेकंड 5 सेकंड इज द लेंथ and 5 मीटर पर 10 मीटर पर सेकंड 10 meter upon second is the breadth so that is second cut क्या second और second 50 सेकंड और सेकंड कट गया तो क्या बचा 50 मीटर क्या है इसका मतलब कि बॉडी टोटल कितना जगह कहाँ तक गया ये 3 मीटर 10 जीरो से शुरू किया था ना हम लोगों ने यहाँ पे which we ignore but है ना जीरो एग्जिस्ट करता है ना 1 सेकंड एग्जिस्ट करता है कि नहीं सो कितना गया ये पूरा टोटल कितना मीटर्स गया यहाँ पे 40 दिखा रहा है बट एक्चुअली 0 to 10 भी हम लोग काउंट करेंगे कि नहीं तो we did not just take this much of the graph we took the whole part of the graph so whole journey is how much 0 to 10 we have to add that to a by figure or not 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 so total displacement will come to 50 यहाँ पे देखो ये पूरा 5 तक जा रहा है कि नहीं ये पूरा हमने ड्रॉ किया था कि नहीं यहाँ पे हम लोगों ने ये सिर्फ 5 पोजीशन 5 तक लिया था मतलब 5 सेकंड के पोजीशन तक लिया था हम लोगों ने 5 सेकंड के फुल पोजीशन we had not considered this over here so if you take this also into account your displacement total will come to 50 we will take it up once again in the next class and continue with all the graphs and finish मैम मैं लिखता हूँ so यहाँ तक आने वाला है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी अभी तो एक्सेलरेशन हुआ 0 to 10 हाँ होगा ना इसके बाद वाला स्टेप में एक्सेलरेशन होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही रहेगा नहीं 0 to 10 के लिए भी एक्सेलरेशन हुआ है 10 मीटर हाँ लेकिन हम लोग ने 0 से इसीलिए 0 से लिया नहीं बिकॉज इट्स अ ट्रिकी एरिया सैटरडे मैंने तो बोला था हाँ लेकिन आज सबमिट करने बोले ये नहीं चाहिए मुझे पेपर में लिखा हुआ चाहिए वो बोला है ना मैम ने पेपर में लिखा हुआ एमसीक्यू कल
कल ही लाना ही है कल। अच्छा बैठ जाइए सब लोग। Today the AC is not working. Something has gone wrong. Just sit. Give me 5 मैम हवा तो निकल रहा है, फैन है। आप रिमोट दे सकते हो, मैं ठीक कर दूंगी। रिमोट दे सकते हो, मैं ठीक कर सकती ये हूँ। लो करो ठीक। हाँ ये मैंने आज रागी की चौकोस खाई थी, मुंह कड़ा हो गया मेरा। अरे कुछ और ठंडा बात नहीं हो रहा है। तू इस टाइम क्यों आई? ये ठंडा हो गया क्या? लग रहा है ठंडा हुआ है। थोड़ा उठा था। 2 मिनट रुक तो जा। हो गया ठीक? चेंज करो। थोड़ा सा लग रहा है हवा ये। नहीं, I think something has gone wrong. Today morning hour also it's not working. Mama, what time are you coming? नहीं, जल्दी आ थोड़ा, 11:30 को आ। हाँ। मैम हमारा तो शाम को ही है ना? हाँ, तुम लोग का है, दोपहर को फ्री हो क्या तुम लोग? शोभा लोगों का स्कूल है ना? स्कूल है, वही तो ना। क्योंकि मैं वही सोच रही थी कि दोपहर को दिशा का तो स्कूल है, वही भूल जाती हूँ मैं बार-बार, दोनों लड़कियों का स्कूल। इन लोग का फुल डे है या हाफ डे है? मैम मेरे साथ हाफ हाफ डे होना हाफ चाहिए। डे है क्या? देख अभी आने से आ रही है शोभा हाँ, देवी। सबको आने दो। मैम ने वापस चेंज की क्या बेंचेस पोजीशन? नहीं, कुछ भी पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। जैसा था उस दिन वैसा ही है। नहीं मैम थोड़ा गड़बड़ है। तो ठीक कर दो। ठीक तो पड़ा। यहाँ पे एक बेंच गायब है। एक बेंच गायब है? हाँ। हाँ, कैसे? यहाँ पे भी 3 होती है, यहाँ पे 3 होती है, यहाँ पे 3 होती है, यहाँ पे 3 होती है। मैम एक बेंच गायब है। हाँ, मैंने गायब किया उसको। So that we have some space. थोड़ी तो हवा आ रही है मैम इसमें से। But that guy is coming at 7. नहीं मेरा बात है। क्या है ठीक है? आओ आओ आओ। मैं जहाँ वाली सुना रहा ना, इतने रगड़े ऐसे हो रहा है। अजीब सी आवाज़ आ रही है ऐसे से। नहीं पता। मैंने एक फंड सेंड की थी ग्रुप पे पीरियडिक टेबल की। मैम वो क्या है मुझे समझा नहीं। वर्कबुक का है? हाँ, वर्कबुक में है ना पीरियडिक टेबल वाले जो टेबल वाले क्वेश्चंस है ना, वो इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करो। जो फाइल भेजा है ना वो कंप्लीटेड है। तुम्हें जो वर्कशीट प्रिंट आउट दिया है ना पीरियडिक टेबल का वर्कबुक ना? हाँ। उसमें चेंजेस करो, वो टेबल कंप्लीट